آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بڑھتے ہوئے تناؤ اور دنیا کے مختلف حصوں میں عدم استحکام کے دوران یوگ امن و سکون کا راستہ دکھاتا ہے۔ انہوں نے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کو تنازعات سے تعاون کی جانب لایا جائے۔ وشاکھاپٹنم میں یوگ کی بین الاقوامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یوگ کو محض انفرادی عادت نہ بنایا جائے بلکہ اسے عالمی شراکت داری کا ایک ذریعہ ہونا چاہیے۔ بھارت نے ایران میں پھنسے ہوئے نیپال اور سری لنکا کے باشندوں کو بھی آپریشن سندھو کے تحت وہاں سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ موجودہ مالی سال کے دوران اب تک براہ راست مجموعی ٹیکسوں کی وصولی میں 4.86% کا اضافہ ہوا ہے، اور لیڈز کرکٹ ٹیسٹ میچ میں بھارت آج کھیل کے دوسرے دن اپنے کل کے اسکور 3 وکٹ پر 359 رن سے آگے کھیلنا شروع کرے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ آج دنیا کے مختلف حصوں میں بڑھتے ہوئے تناؤ، بدامنی اور عدم استحکام کے دوران یوگ امن کا راستہ پیش کرتا ہے۔ آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں خوبصورت ساحلی پٹی پر یوگ کے 11ویں بین الاقوامی دن کی تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یوگ انسانیت کو سانس لینے، توازن قائم کرنے اور دوبارہ تندرست ہونے کے لیے نئی توانائی فراہم کرتا ہے۔ दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा is the pause button that humanity needs to breathe, to balance, to become whole again। मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। लेट दिस योगा डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2.0 where inner peace becomes global policy। انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یوگ کو محض ایک ذاتی مشق نہیں بلکہ عالمی شراکت داری کے لیے ایک ذریعہ بننا چاہیے۔ انہوں نے ہر قوم اور ہر معاشرے سے یوگ کو اپنے طرز زندگی کا حصہ بنانے اور عوامی پالیسی میں ضم کرنے کی اپیل کی۔ وزیر اعظم مودی نے ایک پرامن، متوازن اور پائیدار دنیا کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اجتماعی کوشش کا تصور کرتے ہوئے کہا کہ یوگ کو تنازعات سے تعاون اور تناؤ سے حل تک دنیا کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ یوگ کی سائنس کو جدید تحقیق کے ذریعے مضبوط کرنے کی بھارت کی کوششوں کو اجاگر کرتے ہوئے عالمی سطح پر اس کو پھیلانے میں مدد فراہم کرنے کے لیے وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کے سرکردہ طبی ادارے سرگرمی کے ساتھ یوگ کی تحقیق میں مصروف ہیں، جس کا مقصد موجودہ طبی طور طریقوں میں اس کی سائنسی مطابقت کو قائم کرنا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بھارت اپنے طبی اور تحقیقی اداروں کے ذریعے یوگ کے میدان میں ثبوت پر مبنی تھراپی کو فروغ دے رہا ہے۔ آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایمس نئی دلی کے تحقیقی نتائج کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یوگ نے قلبی اور اعصابی عوارض کے علاج کے ساتھ ساتھ خواتین کی صحت اور ذہنی تندرستی کو بہتر بنانے میں نمایاں اثر دکھایا ہے۔ दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। تقریباً 2,72,000 لوگوں نے وشاکھاپٹنم میں اس اہم تقریب میں شرکت کی، جس میں مشرقی بحری کمان نے فلائی پاس کیا۔ 45 منٹ تک یوگ کا یہ سیشن جاری رہا۔ ملک بھر میں یوگ کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے۔ لداخ کے کرگل میں کھری سلطان چو اسپورٹس اسٹیڈیم میں یوگ کا بین الاقوامی دن نہایت جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ تقریب کی شروعات یوگ کرنے کے عزم کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد یوگ سے دلچسپی رکھنے والے سینکڑوں افراد نے یوگ سیشن میں حصہ لیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج دہرادون میں پولیس لائن میں منعقدہ یوگ کیمپ میں حصہ لیا۔ عالمی سطح پر یوگ کو فروغ دینے میں بھارت کے اہم رول کو اجاگر کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ عالمی برادری اب بڑے پیمانے پر یوگ کا احترام کرتی ہے۔ مختلف بر اعظم کے لوگ اس کے فوائد کو سمجھ رہے ہیں اور اس کے ثمرات حاصل کر رہے ہیں۔
योग पूरी मानवता की साझा धरोहर बन चुका है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत की पहल पर योग के प्रति विश्व समुदाय का सम्मान बढ़ा है और दुनिया भर के लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। सदर जमहूरिया ने जोर देकर कहा कि योग महज एक वर्जिश नहीं बल्कि ये एक सेहतमंद और मुतवाजिन तर्ज जिंदगी की बुनियाद है। उन्होंने योग को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने की अहमियत पर जोर दिया। गोवा में नई और काबिल तजदीद तवानाई के वजीर ममलकत श्रीपद नायक ने पुराने गोवा में योग के 11वें बैन-अवी दिन की तकरीबात की क़यादत की। वजीर आला डॉक्टर प्रमोद सावंत ने तालीगांव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में योग डे के प्रोग्राम की क़यादत की। आज पूरे मध्य प्रदेश में योग का 11वां बैन-अवी दिन पूरे जोश खरोश के साथ मनाया गया। भोपाल में अटल पथ पर रियासती सतह पर योग का एहतमाम किया गया। वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव, कबायली उमूर के मरकजी वजीर ममलकत दुर्गादास यूकी और लोकसभा के मेंबर वी.डी. शर्मा ने इसमें हिस्सा लिया। उनके अलावा सैकड़ों दूसरे अफराद ने भी प्रोग्राम में योग के मुख्तलिफ आसन किए। वजीर आला डॉक्टर यादव ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि योग से जहन को इत्मीनान और सुकून मिलता है। इत्मीनान और तसल्ली से अदम तशद्दुद पैदा होता है और यही हमको वसुधैव कुटुंबकम का दर्ज देता है। योगा के 11वें बैन-अवी दिन के मौके पर कौमी राजधानी दिल्ली ने मरकजी वज़रा, लीडरों और ओहदेदारों को योगा से दिलचस्पी रखने वाले अफराद के साथ योगा करते हुए मुशाहदा किया ताकि तंदुरुस्ती और जहनी सुकून की अहमियत पर जोर दिया जा सके। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट के अहाते में योग के आलमी दिन की तकरीबात की क़यादत की। वहीं मरकजी वजीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा ने कर्तव्य पथ पर योग तकरीबात में शिरकत की। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नेहरू पार्क में मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों के साथ योग की मशक की। वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने लखपति दीदी के साथ पूसा में योग के बैन-अल-अक़वामी दिन के प्रोग्राम में शिरकत की। हाउसिंग और शहरी उमूर के वजीर मनोहर लाल ने जंतर मंतर पर योग की मशक की। नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया के सफीरों के साथ इंदिरा गांधी स्टेडियम में योग डे की तकरीबात में शिरकत की। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। पंजाब में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स मोहाली ने आज योग की 11वें बैन-अवी दिन के मौके पर सेहत पेशेवर अफराद के जरिए योग का सबसे बड़ा सेशन मुनक़िद करके एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नया रिकॉर्ड कायम किया। आज योग के बैन-अवी दिन कौमी राजधानी में आकाशवाणी हेडक्वार्टर्स में योग का खुसूसी इजलास मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम में आकाशवाणी की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, ADG एलमदुनाग और दीगर अहलकारों और अमले के अफराद ने योग आसनों में हिस्सा लिया। इत्तलात और नशियात के वज़ीर ममलकत डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि वज़ीर आज़म की कोशिशों से अक़वाम मुत्तहिदा ने योग को तस्लीम किया है। जम्मू कश्मीर के कश्मीर खित्ते में पूरे 10 अज़ला के लाखों लोगों ने योग की तकरीबात में हिस्सा लिया। योग के बैन-अवी दिन के मौके पर आज दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की राजधानियों और शहरों में हज़ारों अफराद ने योग की तकरीब में हिस्सा लिया। इलाकाई यकजहती और यगानकत का इजहार करते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से अपने बाशिंदों को निकाले जाने के साथ साथ श्रीलंका और नेपाल के बाशिंदों को भी लाने का फैसला किया है। 2025-26 के माली साल के दौरान 19 जून तक बराह रास्त टैक्सों की मजमूई वसूली में गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 4.86% का इजाफा हुआ और ये वसूली लगभग 5.45 लाख करोड़ रुपये हो गई। टेस्ट क्रिकेट में लीड्स में जारी एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में पहले दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने 3 विकेट पर 359 रन बना लिए थे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बढ़ते हुए तनाव और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अदम इस्तेहकाम के दौरान योग अमन सुकून का रास्ता दिखाता है। उन्होंने इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि दुनिया को तनाज़ात से ताउन की जानिब लाया जाए। विशाखापट्टनम में योग की बैन-अवी तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि योग को महज इनफरादी आदत न बनाया जाए बल्कि इसे आलमी शराकतदारी का एक जरिया होना चाहिए। भारत ने ईरान में फंसे हुए नेपाल और श्रीलंका के बाशिंदों को भी ऑपरेशन सिंधु के तहत वहां से निकालने का फैसला किया है। मौजूदा माली साल के दौरान अब तक बराह रास्त मजमूई टैक्सों की वसूली में 4.86% का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।